Student, today topic is vector model of an atom. As you know, vector atom model, in earlier videos I also discussed about vector model of an atom. Student, vector at model of an atom. What is vector model of an atom? It is a semi-classical model where orbital motions and spinning motions, both motions are treated classically, but their values are given by quantum mechanics. That's why I have written this is semi-classical model. What are the important features of vector model of an atom? First is spatial quantization. Second is spin of electron. स्पेशियल क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? ये स्पेशियल क्वांटाइजेशन को समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बना दिया. ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का. ये इलेक्ट्रॉन दिखाया. ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट. और ये एल वेक्टर जो है इसका आउटवर्ड नॉर्मल है. ये जेड एक्सिस है जिसको हम जेड एक्सिस या थर्ड एक्सिस या मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस भी बोलते हैं. और ये एल वेक्टर का जो परपेंडिकुलर यहां से हमने ड्रॉ किया एम सफिक्स एल, ये पूरी हाइट एम सफिक्स एल है. सो स्पेशल क्वांटाइजेशन में 3-4 पॉइंट्स हैं. पॉइंट ए, स्पेशल क्वांटाइजेशन विल डील विद व्हाट? इट विल डील विद एल वेक्टर. एल वेक्टर के मतलब होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. सेकंड पॉइंट है स्पेशल क्वांटाइजेशन के बारे में, एज द ऑर्बिट प्रीसीसेस. जब ऑर्बिट प्रीसीस करता है, रोटेट करता है, एज द ऑर्बिट प्रीसेसिस. ऑर्बिट का ये नॉर्मल, ये ऑर्बिट की एक ओरिएंटेशन है. ये ऑर्बिट का ये नॉर्मल है. As the orbit precesses, orbit normal, this is orbit normal, इस orbit का ये normal है, outer normal, designated by L vector. It will describe a cone, ये cone है. About which axis? Magnetic field axis. Third point about spatial quantization. Component of angular momentum. Component of angular momentum in the direction of field is L suffix z. This is L suffix z. ये z एक्सिस है. इसको z एक्सिस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस भी बोलते हैं. ये जो है दिस इज L suffix z. सो कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z डायरेक्शन के अलोंग. एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z डायरेक्शन के अलोंग इज L suffix z. This is L suffix z. This is L. This is in magnitude L. This is in magnitude L suffix z. So component of angular momentum in direction of field is L suffix z. From quantization of direction, L suffix z vector का mode magnitude is equal to m suffix l into h bar. H cross is h over 2 pi. M suffix l is orbital magnetic quantum number. Student ध्यान दें, m suffix l stands for orbital magnetic quantum number, and value of orbital magnetic quantum number runs from -l to l, and total permissible values of m suffix l is equal to 2l plus 1. क्योंकि -l है, l है, वो बीच में 0 भी आएगा, तो 2 तो L हो गए, एक 0 भी एक वैल्यू है. तो टोटल हाउ मेनी टोटल पॉसिबल वैल्यूज टेकन बाय m suffix l? आंसर इज 2l plus 1. तो L जो है L वेक्टर which is orbital angular momentum vector will precess about direction of magnetic field. Fourth point about spatial quantization. What is m suffix l? m suffix l को बोलते हैं प्रोजेक्शन. किसका? L वेक्टर का. मैंने B पे प्रोजेक्शन ले लिया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर का जो फुट होता है वो सेंटर से कितनी दूर होता है, वो प्रोजेक्शन. तो m suffix l is projection of L vector along which axis? B axis, magnetic field axis. सो ये एंगल मैंने एक ओरिएंटेशन, ये एक ऑर्बिट की एक ओरिएंटेशन के लिए एक एंगल है.
So there are set of number of orientation of this orbit during its precision. So only those angles are permissible for which m suffix l equal to l, l minus 1, l minus 2, etc. up to minus l. And difference between two successive value of l is 1. इधर से जाएंगे तो एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर से जाएंगे तो एक वैल्यू घटती जाएगी, इधर आएगा माइनस एल, फिर माइनस एल प्लस 1. So orientation of electron with respect to selected axis is termed as a space quantization. Let me recapitulate. Orientation of electron with respect to selected axis is known as space quantization. Student, इस right angle triangle से cos theta आप देख सकते हैं. This angle is 90. एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ एंगल बनता है बेस. cos थीटा इज बेस और हाइपोटेन्यूज. cos थीटा क्या आ जाएगा? L सफिक्स z वेक्टर का मैग्नीट्यूड. दिस इज L सफिक्स z, दिस इज L. तो L सफिक्स z का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और L वेक्टर का मैग्नीट्यूड. स्टूडेंट, वेक्टर को कभी भी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते. एक स्टूडेंट को मैंने पूछा आई कैप डिवाइडेड बाई आई कैप कितना होता है? कहता 1. नो, I cap divided by I cap is not defined. Vector cannot be divided by vector itself, student. इसलिए मोड लिखना जरूरी है. वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं. एंड L सफिक्स z वेक्टर का मोड अभी मैंने बताया फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन. L सफिक्स z वेक्टर का मोड इज m सफिक्स l इनटू h क्रॉस. एंड वेक्टर L का मोड अभी मैं आपको बताऊंगा. वेक्टर L इज L स्टार इनटू h क्रॉस. अभी मैंने कहा था वेक्टर एटम मॉडल में कि वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन इज गिवन बाय क्वांटम मैकेनिक्स. से जितनी भी स्कैटर्ड क्वांटिटीज होती हैं STARRED, दे कम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स. L वेक्टर इज L स्टार H क्रॉस टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड. वेक्टर L का मोड, किसी भी वेक्टर का मोड क्या होता है? स्केलर. और L स्टार का मतलब होता है स्क्वायर रूट L इंटू L स्टार. जब इसका मोड होगा तो इसका भी मोड होगा. L स्टार का मॉडुलस जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, वो रूट L इंटू L प्लस 1. और साथ में ये H क्रॉस. किसी भी वेक्टर का मोड स्केलर. लेकिन इस L और इस L में फर्क है. नंबर ऑफ टाइम आई यूज्ड टू टेल, राइट साइड में जो L होता है वो क्वांटम नंबर है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम है. दिस L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस L इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. So this is root L into L plus 1 and H cross, you know, H over 2 pi. H cross is reduced Planck constant. So L suffix Z वेक्टर का मोड M suffix L H पर, और L वेक्टर का मोड मैंने अभी बताया फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, रूट L into L plus 1 into H cross cancel. So spatial quantization is very important topic, which is first salient feature of vector model of atom. Vector model of atom के there are two salient feature. First is spatial quantization. I have discussed spatial quantization. मैं फिर बता दूं, spatial quantization will deal with vector L. यहाँ पे vector L की बात होती है, और साथ ही ये पूरा आर्टिकल इस में spatial quantization से डील कर रहा हूं. फिर हम सेकंड पॉइंट पे आपको spatial quantization तो ये वेक्टर L का होगा. फिर हम आपको स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन की बात करेंगे और क्यों बताएंगे कि व्हाट इज नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन. दैट विल बी टॉक्ड लेटर. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड, angular momentum of particle is represented by a vector of length proportional to the plane of rotation. ये मैंने फिर डायग्राम बताया. ये L वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन M सफिक्स L. ये B एक्सिस या Z एक्सिस. B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ही MK सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल B है. CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल H है. लेकिन हम जो डील करते हैं वो ऐसे सिस्टम से कर रहे हैं. एंड M suffix L अभी मैंने बोला था ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. फॉर इंस्टेंस आई टेक एग्जांपल, L इज 1, और अगर L की वैल्यू 1 है तो L वेक्टर का मोड कितना आ जाएगा? रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी रूट 2 H over 2 पाई. और M suffix L की वैल्यू 1 के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है. हालांकि जब L की वैल्यू 1 हो तो 3 ओरिएंटेशन, L की वैल्यू 1 हो तो M सफिक्स L की वैल्यू 1 0 माइनस 1, L से माइनस L. और ये मैंने आपको बताया कि
angular momentum of particle is represented by vector of length proportional to plane of rotation. और ये मैंने अब बताया ये न्यूक्लियस है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बोहर की थ्योरी में बताया था। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कैसे होगी, लाइक दिस। ये देखिए राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर इलेक्ट्रॉन इज revolving in anti-clockwise direction. Curl the fingers of your right hand in anti-clockwise direction. Thumb is outward. Repeat. This is right hand. Electron is in counter-clockwise, anti-clockwise. Finger को anti-clockwise curl करिए. Thumb outward है. Outward यानी इस white board के plane का outward है. तो this is L vector. Outward का मतलब dot. Conventional current is in clockwise direction. और म्यू सफिक्स एल को बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि कोई भी जब ये तो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया और ये कन्वेंशनल करंट है, और जब भी करंट क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है तो वो करंट लूप बन जाता है। एंड करंट लूप ऑलवेज बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, और उस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सफिक्स एल मीन ऑर्बिटल, म्यू मीन मैग्नेटिक मोमेंट। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं करंट लूप ऑलवेज बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, और उस करंट लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज करंट इनटू एरिया, एंड करंट इज चार्ज ओवर टाइम, एंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज टाइम पीरियड। एंड स्टूडेंट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इस जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस आ रहा है, ये ऑर्बिट दिखाया मैंने, उस ऑर्बिट की रेडियस आ रहा है। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, फिर m से ऊपर मल्टीप्लाई m से नीचे। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज बेसिक चार्ज, m ओमेगा आर स्क्वायर यू नो फ्रॉम योर +1 इंटरमीडिएट क्लास। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L भी होता है, मैंने अभी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए P सफिक्स L लिया। P सफिक्स L इज अ सिंबल व्हिच इज डिनोटिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज म्यू सफिक्स L ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ये स्केलर फॉर्म है, हर रिलेशन की दो फॉर्म होती है, एक स्केलर फॉर्म एक वेक्टर फॉर्म। दिस इज स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट माइनस साइन विल बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है, एंड नेगेटिव साइन रिवील्स दैट, इंडिकेट्स दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड opposite to orbital magnetic moment is directed opposite to orbital angular momentum vector। ऑर्बिटल ये एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, therefore म्यू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी। मैं फिर बता दूं, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये एल वेक्टर की डायरेक्शन, पी सफिक्स एल वेक्टर इज आउटवर्ड और म्यू सफिक्स एल वेक्टर इज इनवर्ड। ऐसे इनवर्ड में टक आएगी आवाज, ये टक का मीन इनवर्ड है यानी क्रॉस, दैट्स व्हाई दिस इज इनवर्ड यानी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस लोब, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लोब बट आउटवर्ड। दिस इज एल वेक्टर, this is mu suffix L vector, that's what the meaning of minus sign। so P suffix L vector या L vector, that's matter of choice of symbol। और मैंने अपनी अभी यहाँ पे 1 है, मैंने in place of 1 I have written G suffix L। little g suffix L को बोलते हैं ऑर्बिटल G फैक्टर। आगे जाके हम एटॉमिक फिजिक्स में G फैक्टर की बात करेंगे, G suffix L, G suffix S, G suffix J। जी सफिक्स एस आएगी जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करेंगे, वहां हम बात करेंगे स्पिन जी फैक्टर। लेकिन यहां पे चूंकि हम स्पेशल क्वांटेशन में हम बात करेंगे इट विल डील विद एल वेक्टर यानी ऑर्बिटल मोशन, तो ये 1 की जगह मैंने लिटिल जी सफिक्स एल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल जी फैक्टर। ऑर्बिटल जी फैक्टर इज 1।
सो p सफिक्स l वेक्टर का मोड यानी l वेक्टर का मोड विच इज l स्टार h बार. म्यू सफिक्स l की वैल्यू ये लिखी हुई है मैंने लिटिल e और 2m, और p सफिक्स l की वैल्यू है l स्टार इनटू h क्रॉस. एंड स्टूडेंट h क्रॉस इज h ओवर 2 पाई, तो ये आ जाएगा EH और 4 पाई m इनटू l स्टार. एंड दिस l स्टार इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स l स्टार इज रूट l इनटू l प्लस 1. ये जो EH और 4 पाई m, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इन एटॉमिक फिजिक्स. एंड दिस इज m, ध्यान दे m जो है दिस इज स्मॉल m स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड दिस म्यू सफिक्स b को बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन. Bohr's magneton, very important. Bohr's magneton, whose formula I have written EH divided by 4 pi m. Bohr magneton. Planck constant की वैल्यू आप जानते हैं 6.63 10 to power minus 34 joule second. Mass of electron 9.1 10 to power minus 31 kg. E 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. If you incorporate this value and work out, this will be 9.27 into 10 to power minus 24. और इस मैग्नेटिक मोमेंट के जो म्यू सफिक्स b के यूनिट वही होंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट है. फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया. करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट या तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होते हैं या फिर जूल पर टेस्ला. तो सो फार आई हैव डिस्कस स्पेशल क्वांटाइजेशन which deals with L vector. Now I will discuss second feature of vector model of atom, that is electron spin. Student, salient feature of vector model of an atom. Second salient feature is electron spin. यानी स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन. इन 1925 Ehrenbeck and Goudsmit, two Dutch physicists from Leiden, put forward the hypothesis of electron having spin. That is, electron possesses rotational degree of freedom. Student, if electron spins about an axis, then it has both angular momentum as well as magnetic moment. Another name of angular momentum is mechanical moment. So angular momentum of electron must be quantized as per Planck and Bohr. ये तो हमने बताया था, बोहर ने कहा था angular momentum is equal to integral multiple of h bar. If value of spin angular momentum is smallest in units of h over 2 pi, anything which is multiple of h over 2 pi, h cross is angular momentum. It must have 2s plus 1 possible orientations with respect to some special direction. ये है spatial quantization of electron spin का मतलब. 2s plus 1 possible orientation, जैसे उसमें मैंने बताया था 12 plus 1 possible values of m suffix l. वहां पे हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की थी. यहाँ पे एक तरीके की हम स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे, और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज -s से लेके s. वहां पे m सफिक्स l की वैल्यू, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू l से लेके -l, विद टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m सफिक्स l 12 plus 1. यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल पॉसिबल वैल्यूज 2s plus 1 आएगी, और m सफिक्स l की वैल्यू रन्स फ्रॉम s, s-1, s-2 एटसेट्रा एटसेट्रा अप टू -s. तो एक s हो गया, एक -s हो गया, और बीच में 0, इसलिए 2s plus 1. Half integral value of spin for electron is to be taken as a fixed and intrinsic property of electron. Very important sentence. Total angular momentum of atom from electron is made of two parts. One is orbital rotation of electron around the nucleus, which I just discussed. Second is spin of electron around an axis. Spin of electron around an axis through its center of mass. ये देखिए स्टूडेंट,
two motions of electron I have shown. This is orbital angular momentum vector. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. और ये मैंने इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन दिखाई है अबाउट इट्स एक्सिस. लिखा हुआ मैंने स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड विच एक्सिस, अराउंड एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. और वेक्टर एस का मोड इज रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बार. मैंने पहले ही बताया जो लेफ्ट साइड होता है वो एंगुलर मोमेंटम है, जो राइट साइड है वो क्वांटम नंबर है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस लिटिल एस एंड लिटिल एस. एनीथिंग जिस किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर. इसका मतलब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये स्पिन क्वांटम नंबर. क्योंकि एच क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई तो ये एंगुलर मोमेंटम तो बनना ही था, लेकिन दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. और क्वांटम मैकेनिक्स से रूट एस इंटू एस प्लस वन क्या था, स्टैर्ड क्वांटिटी, एस स्टार. सो एवरी इलेक्ट्रॉन हैज एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं स्पिन. Every electron has an intrinsic angular momentum called spin, and all electrons have same spin. अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी पुट्स फर्म फूटिंग. ये तो एलन और गाउड-स्मिथ ने एक प्रपोजल रखा था, एक हाइपोथेसिस, एक पोस्टुलेट दिया था, लेकिन आगे डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी पुट्स फर्म फूटिंग ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन. और एक और एक्सपेरिमेंट आता है, स्टर्न एंड गार्लक एक्सपेरिमेंट आल्सो गिव्स जस्टिफिकेशन ऑफ एविडेंस ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है. कई बार आता है नेम द एक्सपेरिमेंट विच गिव्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टर्न एंड गार्लक. तो डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी पुट्स द फर्म फूटिंग ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन. दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, and minus sign indicates their direction is opposite to each other. If vector s is outward, then mu s vector is inward and vice versa. और ये जो doubly factor है, ये मैंने word लिखा है, यही physics है. Don't forget to write physics in between mathematical steps if you want to score 100% marks in physics. तो -2 into little e और 2m into vector s. पीछे जो फर्स्ट फीचर था वेक्टर मॉडल में, उसमें वेक्टर म्यू सफिक्स एल, यहाँ पे -1 था e by 2m into वेक्टर एल. वहां पे g सफिक्स एल की वैल्यू वो ऑर्बिटल g फैक्टर 1 था, ये स्पिन g फैक्टर जो कि 2 है. दिस इज स्पिन g फैक्टर एंड दिस डबल मैग्नेटिज्म एज वेल एज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन both can be explained on the basis of Dirac relativistic theory. Why this two factor, why this double magnetism? Answer is given by Dirac relativistic theory. Idea of electron spin was postulated to explain fine structure of spectral line. So to account for doublet fine structure in alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, they contain single valence electron outside one or more closed subshells. It is sufficient to ascribe a spin S to single valence electron of value half. तो ये था वेक्टर एटम मॉडल जिसमें मैंने 2 salient फीचर डिस्कस किए. एक मैंने आपको भी बताया दैट डील्स विद स्पेशल क्वांटाइजेशन, दैट डील्स विद एल वेक्टर. और यहाँ पे जो मैंने वहां पे मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की, यहाँ पे मैंने स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की, जिसमें मैंने कहा कि स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -s से लेके s. How many possible orientation with respect to some special direction? 2s plus 1. So thank you so much student. और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम we will discuss वेक्टर एटम मॉडल तो हमने डिस्कस किया, और वेरियस एक क्वेश्चन और आएगा, राइट डाउन वेरियस क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर मॉडल एटम. तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा. थैंक यू सो मच.